Hello students, I am Mrs. Sheetal Chauhan from New Catholic Mission School Chapwa and I am teaching you maths of class 8th. So in previous video you have seen that how to solve the equation and how to form an equation. So today I am going to continue our chapter 2nd, linear equations in one variable. So today you will learn how to solve linear equation. Cx is 2.5. Okay. So here we have question n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 equal 21. So this is the linear equation which you have to solve. So here what is the variable? Here variable is n and n is present on the left hand साइड n कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड, सारे n लेफ्ट हैंड साइड है, मीन्स आपको किसी को ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6. सबसे पहले हम 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 12 बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 6. और अगर आपको ऐसे नहीं आए तो आप 2, 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करके भी देख सकते हैं. दैट कम्स 12. सो द एलसीएम इज 12. सो व्हाट वी विल डू? वी हैव टू टेक एलसीएम हियर 12. सो इन 2 टेबल 12 कम्स हाउ मेनी टाइम्स? 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6. सो n is also multiplied by 6. जिससे आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6n. देन 4 टेबल 12 कम्स 3 टाइम्स, सो 4 इंटू 3. सो 3 इंटू 3 इट इज 9n. सो 6n माइनस 9n. देन इन 6 टेबल 12 कम्स 2 टाइम्स, सो 6 इंटू 2. सो 5 is also multiplied by 2. So 5 2s are 10n. So we get 6n minus 9n plus 10n. And in denominator 12. Denominator में आपके आएगा 12. तो 12 को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया. 12 डिवाइड में है. So 12 change into multiply. So 21 multiplied by 12. तो आपको क्या मिलेगा? 252. So we get here 9 minus 6 it is 3, but sign of greater, so minus 3 plus 10, minus plus minus, so 10 minus 3 it is 7 and sign of greater 10 बड़ा है इसलिए साइन प्लस की, तो 7n equal 252. Now you have to remove 7 from left hand side, so divide both side by 7. So n equal 252 upon 7. So what we get? N equal 36. So in this way you can solve the linear equations. Now let's see next question. Simplify and solve the linear equation. Here equation is 3 bracket t minus 3 equal 5 into bracket 2t plus 1. Okay. Now जब भी बेटा आपको ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट मीन्स जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट, वो नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा. इट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड बाय t, 3 t से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑल्सो. ओके, सो 3 इंटू t वी गेट 3t and 3 multiplied by 3, so we get 9 and here sign of minus equal 5 multiplied by 2t, so 5 2s are 10, so 10t, then 5 multiplied by 1, so we get 5. So our equation becomes 3t minus 9 equal 10t plus 5. इस तरह से आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है by multiplying it. Now अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड एंड कांस्टेंट राइट हैंड साइड. So 10t is in plus, so it will change into minus and this plus 5 you have to transpose here. So minus 9 becomes as it is क्योंकि ये यहीं पर है.
5 को आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो +5 बिकम्स -5. देन 10t वही है राइट हैंड साइड पर, सो एज इट इज. देन 3t इज प्लस, सो इट बिकम्स माइनस. सो माइनस माइनस प्लस, 9 + 5 इट इज -14 and 10t - 3t it is 7t. नाउ वेरिएबल के साथ क्या है 7. अब आपको 7 को रिमूव करना है. दैट मीन्स डिवाइड बोथ साइड बाय 7. या तो 7 से दोनों साइड डिवाइड करो या फिर 7 को उधर ट्रांसपोज करो. तो इट बिकम्स 14/7. सो t इक्वल -14/7. सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. So we get t equal -2. Okay. So in this way we simplify it and then we solve the equation. Okay. Now let's see next question. Next question is 15 bracket y -4 -2 bracket y -9 plus 5 bracket y +6 equal 0. Now आई एक्सप्लेन यू कि अगर ब्रैकेट हो तो आपको हमेशा क्या करना है, ब्रैकेट का मीन्स मल्टीप्लाई. तो जो भी नंबर बाहर है उससे अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय y एंड 15 मल्टीप्लाइड बाय 4. ऐसे ही 2 मल्टीप्लाइड बाय y एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 9. सो व्हेन 15 मल्टीप्लाइड बाय y, सो वी गेट 15y. देन 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, so we get 15 4s are 60. Then minus 2 into y, that means -2y. Then here minus and here minus. Minus into minus we know it is plus. So plus 2 into 9 it is 18. 2 9s are 18. Plus 5 into y 5y and 5 into 6 it is 30 equal 0. आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई. नाउ यू हैव टू सॉल्व कैसे करना है, सारे कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और वेरिएबल राइट हैंड साइड. तो आप वेरिएबल सॉल्व कर लें पहले. 15y - 2y प्लस 5y. सो 15 - 2 13 और 13 + 5 18. सो व्हाट वी गेट 18y. और इधर आपको इसको सॉल्व करना है. 18 + 13 इट इज़ 48 और 16 - 48 इट इज़ -12, क्योंकि 60 बड़ा है, साइन ऑफ ग्रेटर. अब इस -12 को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं. सो इट इज़ +12. सो 18y = 12. अब आपको इस 18 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड. सो 18 इज इन मल्टीप्लाई, सो इट कम्स इन डिवाइड. सो y = 12/18. सो बोथ आर डिविजिबल बाय 6 टेबल. 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. So we get y = 2/3. So in this way you can solve the linear equations. Okay. Now last exercise of this chapter. Okay. In this exercise you have to do cross multiplication. यहाँ भी आपको equations दिए हैं, पर इन equations को आपको कैसे solve करना है. जैसे 8x - 3 अपॉन 3x = 2. अब यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, इक्वल यहाँ दिया है 2 दैट मीन्स 2/1. तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 8x - 3 एंड 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3x. सो 2 into 3x इट इज़ 6x. अब आपकी इक्वेशन फिर से उसी फॉर्म में आ गई. नाउ 6x you have to take it on left hand side. So 6x is in plus, so it will change into minus. So 8x - 6x equal this -3 we transpose on right hand side. So it is +3. So 8x - 6x we get 2x and here 3. Now 2 you have to transpose on right hand side. So it comes in divide. So x = 3/2. So we get our answer. Okay. Similarly second is also same. Now see its third question. In third question z
upon z plus 15 equal 4 upon 9. So this question again equal to sign given and it is given in fraction form. जब भी fraction form में हो और बीच में equal to हो तो आपको हमेशा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे. ठीक है. सो हियर 9 मल्टीप्लाइड बाय z, सो वी गेट 9z और 4 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 15. अब z प्लस 15 टू टर्म्स है, दैट्स वाई वी राइट इट इन ब्रैकेट. सो हियर 9z. नाउ सॉल्व द ब्रैकेट. 4 मल्टीप्लाइड बाय z and 4 multiplied by 15. So 9z and here 4 into z 4z and 4 into 15 it is 60. So 9z equal 4z plus 60. Now 4z you have to transpose on left hand side. So 9z minus 4z, what we get? 5z. So 5z equal 60. Now transpose this 5 on right hand side. So it is in multiply, so it change into divide. So 60 divided by 5, that means 12. So we get our answer as 12. So children, whenever this type of questions are there, then solve it using cross multiplication. So this question is also same. So you have to solve it. Okay. Now see, its story problem. Here you have given the age of Hari and Harry are in the ratio 5:7. I told you जब भी रेशो वाले सम्स आते हैं आपको क्या करना है, उसको सपोज करना है जो भी रेशो में दिए हैं x के अकॉर्डिंग सपोज करना है. लाइक फर्स्ट नंबर इज 5 गिवन, दैट मीन्स द एज ऑफ हरी इज 5x एंड द एज ऑफ हैरी इज 7x. Because the common ratio between their age is x. So 5x and 7x their ages. Now 4 years from now means 4 साल बाद. 4 साल बाद मतलब उनकी एज में 4 प्लस हो जाएंगे. तो what is the age of Hari? Hari age is 5x plus 4 and Harry age is 7x plus 4. Now here according to question 4 years from now the ratio of their age will be 3/4. 4 year के बाद उनकी एज का रेशो कितना हो जाएगा? 3:4 मतलब 3/4. तो according to question 5x plus 4 मतलब किसकी एज? हरी की एज. 4 years now मतलब 4 साल बाद upon 7x plus 4 which is the age of Harry, it is equal 3:4 मतलब वो किसके इक्वल हो गई? 3/4. So this is again in the form of fraction. फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. So 5x plus 4 multiplied by 4 and 3 multiplied by 7x plus 4. So here 4 then bracket 5x plus 4 equal 3 bracket 7x plus 4. Now bracket means multiplication. So 4 multiplied by 5x and 4 multiplied by 4. So 4 5s are 20x and plus 4 4s are 16 equal 3 into 7 21x and 3 4s are 12. Now अब आपको क्या करना है? x को ट्रांसपोज करना है. So 21x minus 20x and 16 minus 12. 12 is in plus, so it will into minus. So 16 minus 12 it is 4. So what is the value of x? 4. पर आपको क्या नहीं फाइंड करना है? x नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? 5x और 7x because Hari's age is 5x. So 5x means 5 into 4, x is 4, so 5 4s are 20 years. So Hari की एज कितनी है? 20 years. And 7x, that means 7 into 4. So Harry's age is 28 years. So in this way you get the age of Hari and Harry. Now last question of this chapter. Here given
the denominator of rational number is greater than its numerator by 8. मतलब डिनोमिनेटर जो है उसके न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा है 8. अब न्यूमरेटर को क्या किया आपने, इंक्रीज बाय 17. न्यूमरेटर में 17 को बढ़ाया, दैट मीन्स प्लस 17. और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1 और डिनोमिनेटर में आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया. देन द नंबर ऑब्टेन्ड, तो नंबर आपको क्या मिल रहा है 3/2. तो आपको क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर आपको पता है जो कि किस फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में. तो हमें वो रैशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के कंपैरिजन में दिया है, तो आपको क्या सपोज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर की वैल्यू. सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज x. न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया, x. अब डिनोमिनेटर कितना ज़्यादा है न्यूमरेटर से, 8. सो इट इज़ x प्लस 8. वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, मीन्स 8 आपको x में प्लस करने होंगे. तो अब रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, P/Q. मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज x प्लस 8. अब क्वेश्चन में कहा है कि न्यूमरेटर में आपको 17 ऐड करना है, दैट मीन्स x प्लस 17. और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है. सो x प्लस 8 माइनस 1. तो आपको क्या नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है, 3/2. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये इक्वेशन हमने कैसे फॉर्म की है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. न्यूमरेटर में 17 ऐड किया, सो x प्लस 17. डिनोमिनेटर में -1 किया, तो डिनोमिनेटर आपका था x प्लस 8. तो x प्लस 8 माइनस 1 इक्वल, तो हमें मिल रहा है 3/2. नाउ सॉल्व इट. सो 8 माइनस 1 इट इज़ 7. So x plus 17 अपॉन x plus 7 इक्वल 3/2. इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई है. इससे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय x plus 17 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय x plus 7. सो 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 17 34, 3 इंटू x 3x and 3 7s are 21. Now transpose this 21 that side and 2x this side. So 34, this 21 plus 21 change into minus 21 and this plus 2x change into minus 2x. So 3x minus 2x, 1x. That means we get here x. And 34 minus 21. 34 में से 21 subtract किया, so we get 30. So we get the value of x. और x क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर. So numerator of the rational number is 13 and denominator is x plus 8. Denominator क्या है, उसमें 8 प्लस करना है, that means 13 plus 8, that is 21. तो रैशनल नंबर क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज 13 and denominator is 21. So 13/21. So now today your chapter get over. Now you have to complete this all exercise in your notebook and do practice of the sum. Now we will meet in next video. Till then, take care and bye bye.